Okay, welcome you in the class. In the previous class, we were describing about the supervisory control and data acquisition system. We told there are field devices which are called remote terminal units. They are connected in the remote, and at the remote level, at the field level, some of the decisions are taken, and some of the decisions and whatever data is being collected, and depending upon the requirement, the data is sent to the main center where the master terminal unit is there. Master terminal unit, some of the decisions are taken centrally depending upon the nature of the decision, and some of the decision are taken as a remotely by the remote terminal unit. So there is a communication between the RTU and MTU. There is a proper communication between the RTU or MTU. RTU is just like a slave for the MTU, but for its own decision at remotely, it can take the decisions also. So we have described the structure of the remote terminal unit, what are the various information being sent from the RTU, and there is a communication channel between the RTU and MTU. In the power system, this is a one SCADA system of Western Regional Load Dispatch Center. As we know, there is a Power Grid Corporation of India. The power grid is centrally is a one unit, and there are 5 regional grids: North Regional Grid, Western Regional Grid, Northeast Grid, and out of those, out of 5 regional grids, there are further in the there is North Region Grid. Further, there is a state level SLDC, State Load Dispatch Centers are there. So here you see, this is the figure for Western Regional Load Dispatch Center. So this is the Western Mumbai head office of the Western Regional Load Dispatch Center is at Mumbai, and in the Mumbai there are again Maharashtra SLDC, Gujarat SLDC, Madhya Pradesh State Load Dispatch Center, and Goa. In addition to this, there is another sub SLDC. There may be, if there is a big state, then there can be sub SLDC also. So this is one SLDC here, and from each SLDC there are 66 number of RTUs are connected. Remote terminal unit, 66 RTU are connected. Means, what is the meaning of this? That from the western region, from the master terminal unit connected at Mumbai, from there, that not only take the data from each SLDC, but it can control also. Means regional main load dispatch center at the Mumbai, they can control the circuit breaker here. They can control the power flowing at the Gujarat also. So for that purpose, these are the RTU connected at each state load dispatch center. Now this is the just structure of one of the regional load dispatch center. Similarly, the North Regional, similarly the Northeast, similarly the other regional load dispatch centers are from each RTU. Now you see it is like this. There I have shown there are 66 remote terminal units. At master terminal there is a one. At the remote side there are say 66 here in the power system. In the that you have seen, there are from each state load dispatch center there are 66 RTUs. So they are like this remote terminal unit. From each remote terminal unit there is a transmitter receiver like this. So each RTU can take its own decision in its jurisdiction, and some of the data as required is transmitted from RTU from here. And this is a communication medium. Communication may be of various types. It can be optical fiber based communication. It can be carrier current communication. In the electrical system, you know, power transmission can also be used as a communication channel also. So they are current carrier communication,
there can be radio frequency communication, there can be satellite communication, there can be optical fiber, whatever be the communication channel, but this is the compulsory part. Each will be having transmitter receiver. Here also it is having the transmitter and receiver. So they will send the information to this. This will also send the this information will be of controlling in nature. Depending upon whatever they will receive here, and they will give the command to control any of them RTU. Okay, and whatever command they will take, they will receive here. Accordingly, they will give, this command will go to the RTU. Each RTU is connected with several number of sensors, several number of measuring equipments and other devices. So accordingly, this control the various units connected with this. Okay, now I describe remote terminal unit send the data, transmit the data to MTU, and they also receive the order from the MTU, and MTU receive the information from the RTU, and they send the command. They send the controlling command to the RTU. So how the real time? This is the real time calculation. कैसे आपका करेंगे? So for we have taken how this calculation is done. A lot of information is there. Suppose there are 66 says there are 500 RTU are there, and each RTU having the say 100 number of devices further. So how will you find out that any information, any command sent from MTU belong to which equipment, which circuit breaker? So for that purpose, real time calculation is being done for a particular example. Here there is a particular example we have taken. Let there are 8 RTU. आपका मास्टर टर्मिनल यूनिट है, and the remote side number of RTU are later. मतलब हमने डिजाइन कैसे करना है? Let there are 8 RTUs, remote terminal units, and it is likely to increase 20. हमने मतलब ये देखना है कि स्कैनिंग इंटरवल क्या हो. MTU ने डाटा भेजा, अब इधर RTU लगे, उन्हें कैसे पता लगेगा कि कौन सा डाटा, means the information belong to which RTU, and further after RTU it belong to which device of that particular RTU, और which type of control action is required, कौन सा control action होगा, ये कैसे सब पता लगेगा. So for that purpose ये real time data we have just shown. हमने टाइम इंटरवल कैसे निकालेंगे, क्योंकि सभी RTU यहाँ पे है, तो each RTU will be scanning the data. डाटा सभी के पास आ रहा है, ये भी स्कैन कर रहा है, ये भी स्कैन कर रहा है, ये भी स्कैन कर रहा है, लेकिन ये इससे पता लगेगा ये मेरे लिए है, इससे पता लगेगा मेरे लिए नहीं है. तो ये स्कैनिंग इंटरवल क्या होगा और कैसे स्कैनिंग किया जाएगा. सो लेट फॉर एग्जांपल जब वी हैव डिस्क्राइब एक RTU लाइकली टू इनक्रीज 20. इसका मतलब हमने ये माना कि अब डिजाइन करते वक्त तो एक बार डिजाइन कर दिया, 8 अभी लगे हुए हैं, फ्यूचर में ये 20 हो सकते हैं, तो हमने माना 20 के हिसाब से कैलकुलेशन करना है. सो नाउ अब RTU में भी ऑफ डिफरेंट इन नेचर. एक RTU ऐसा हो सकता है कि उसमें डिजिटल पॉइंट कम है, किसी में ज्यादा हो सकते हैं. मींस कितना कंट्रोल है, एक RTU में कंट्रोल सब स्टेशन ऑफ 33 kV, अनदर RTU में भी कनेक्टेड एट 220 kV सब स्टेशन. तो जहां पे वन RTU में हैव द मोर information to be transfer in comparison to the other one. तो इसमें जो लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट RTU का हम स्टेटस देखेंगे. लार्जेस्ट RTU का क्या स्टेटस है. सो फॉर दैट पर्पज से 120 नंबर ऑफ स्टेटस पॉइंट, मतलब जैसे ये 33 की सब स्टेशन है या 220 kV सब स्टेशन है, उसमें इसमें क्या 120 स्टेटस पॉइंट. स्टेटस मीन्स ऑन है या ऑफ है. सपोज वहां बहुत सारे सर्किट ब्रेकर लगे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हैं, ट्रांसफार्मर लगा है, हर एक पे वो ऑन या ऑफ स्टेटस देखना है, वर्किंग है या कट ऑफ है. तो स्टेटस पॉइंट भी 150. अगर 150 पॉइंट्स है तो वो इन्फॉर्मेशन कितनी होगी, उससे या तो 1 होगी या 0. हम कहेंगे 1 मीन ऑन, 0 मीन्स ऑफ. वी कैन डिफरेंशिएट. इफ इट इज ए सिस्टम इज ऑन, switch is on, then we can represent it as a 1. If the switch is off or circuit breaker is off, it is not connected, then
it can be represented as a 0. For example, 150 status points are there. ओके, तो 150 को उसे ध्यान रखना, ईच आरटीयू पे आपका ये स्टेटस पॉइंट हो गए। 40 अलार्म पॉइंट्स, अलार्म मींस आपका सम सिचुएशन इज अलार्मिंग सिचुएशन, टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा पहुंच रहा है तो वो अलार्म अलार्म बजेगा। तो इस टाइप के अगर पॉइंट्स है 40 पॉइंट्स, उसमें कुछ कंट्रोल अपना भी सेल्फ कंट्रोल कर सकता है आरटीयू, एंड इंफॉर्मेशन नीड टू बी सेंड टू द एमटीयू आल्सो। तो 40 आपके अलार्म पॉइंट हो गए। 10 मीटर्स आर कनेक्टेड, 10 मीटर मींस अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर और अदर पावर फैक्टर मीटर एंड अदर मीटर्स आल्सो कैन बी देयर। आपका द स्ट्रेन गेज एक्सेट्रा वेरियस मीटर्स कैन बी देयर। तो आपके 10 मीटर्स हो गए। अच्छा, इफ द मीटर इज कनेक्टेड, मीटर पर क्या सिग्नल होता है? एनालॉग सिग्नल होगा। मीटर इज हैविंग द एनालॉग सिग्नल, सपोज वोल्टेज है 220, तो 220 कैसे मेजर करेंगे? हमने कहा 220 कोई भी वोल्टेज है, कहा 300 को 1 मान ले और उसके अकॉर्डिंगली इसको 16 में डिवाइड कर दें, तो जो भी वोल्टेज होगा मींस ईच एनालॉग measurement can be, each analog measurement can be, you take the command, each measurement unit can be considered, can be analog signal can be measured with the 16 bits। ठीक है नहीं, 16 बिट्स का मतलब क्या हुआ कि आप उसको जो भी एनालॉग सिग्नल है 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और 16 का मतलब क्या हुआ 256 पार्ट में अगर आपने डिवाइड कर दिया, एंड 256 नंबर कैन बी मेजर्ड विद 16 बिट्स। पता है कि नहीं? जैसे आपको 16 बिट्स है तो 2 टू द पावर 16 तो कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 16 कितना हो जाएगा? इतने मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर 16 बिट्स का कोई बाइट है तो आप कितने मेजरमेंट कर सकते हैं उस पर? मेजरमेंट मींस कितने आपके स्टेप्स हो सकते हैं? 2 टू द पावर 16, 2 टू द पावर 8 तो 256 होता है, उसके अकॉर्डिंगली मतलब हम कोई भी एनालॉग सिग्नल है उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करें तो 16 बिट्स आर सफिशिएंट वैल्यू। तो 16 बिट्स आर सफिशिएंट वैल्यू। और 10 मीटर है, 10 मीटर को मेजर करने के लिए हमें कितने चाहिए? 16 इंटू 10 160 बिट्स चाहिए। फिर कुछ एनालॉग पॉइंट्स हैं, एनालॉग पॉइंट्स पे फिर अगेन 16 बिट्स तो 160 चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे आरटीयू साइड पे इतनी बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी रिमोट टर्मिनल यूनिट्स पे। देन एमटीयू विल सेंड इंफॉर्मेशन टू आरटीयू, आरटीयू इंफॉर्मेशन एमटीयू को भेजता है, एमटीयू इंफॉर्मेशन आरटीयू को भेजता है। आरटीयू की इंफॉर्मेशन क्या होता है? जस्ट वो अपने बारे में बता रहा होता है। एमटीयू क्या? कमांडिंग इंफॉर्मेशन होता है, आपको क्या करना है। तो एमटीयू जो इंफॉर्मेशन भेजेगा वो आपके 150 डिस्क्रीट पॉइंट्स, ये भी 150 कि किसी पर्टिकुलर सर्किट ब्रेकर को इसने भेजा 1, तो इसका मतलब ये कह रहा है आप उसे ऑन कर दें। आरटीयू को इंस्ट्रक्शन दे रहा है ऑन कर दें, तो 150 कंट्रोल पॉइंट्स है, तो ये 150 डिस्क्रीट कंट्रोल पॉइंट्स। 6 पोजीशन कंट्रोल है कि आपका वोल्टेज को 10% बढ़ाना है, कम करना है, इस टाइप का ऑर्डर होगा, तो 16 बिट्स। देन 10 कंट्रोलर सेट पॉइंट्स। So in this way, if you add all these, this is 916. अब हमारा और ऐसे कितने आरटीयू, एक आरटीयू से एक आरटीयू पे इतना कम्युनिकेशन, एमटीयू से आरटीयू की तरफ एंड आरटीयू से एमटीयू की तरफ, इतनी बिट्स में इंफॉर्मेशन वन साइड टू अनदर एंड अनदर टू वन साइड बाई डायरेक्शनल, इतनी बिट्स चाहिए। और ऐसे हमारे 20 आरटीयू है, तो कितना हो गया? 20 मल्टीप्लाई बाई दिस, नियरली 20,000 बिट्स। ठीक है, 20,000 बिट्स या तो इधर जा रही होंगी या इधर जा रही होंगी। और अगर हमारा जो पल्स है एमटीयू और आरटीयू के बीच में कैसे जाएगा? पल्स के थ्रू जाएगा, पल्स ट्रांसफर होगा। पल्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? 20,000 बिट्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 20,000 पल्स जा रही हैं। तो हर एक बिट कुछ ना कुछ बता रही है, 1 और 0 है। बिट की वैल्यू 1, डिजिटल कम्युनिकेशन में बिट जो है 1 या 0 होगी, तो 1 और 0 होगी, तो ईच 1 एंड 0 विल रिप्रेजेंटिंग सम मैसेज। तो हमारा ये 20,000 बिट्स है और उसकी स्पीड है 20 बिट्स पर सेकंड। मतलब क्या हुआ? टोटल ट्रांसफर करने में, ये 20,000 बिट्स को टोटल ट्रांसफर करने में 17 सेकंड लगेंगे। 17 सेकंड में सारी इंफॉर्मेशन एक आरटीयू
20, अगर आपके 20 RTU थे, यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन इधर और यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन इधर जाने में 17 सेकंड लगा। और अगर बीच में एफिशिएंसी मान लिया 40 मीन्स दोनों के बीच में एक इंफॉर्मेशन गया, उसके बीच में कुछ गैप रखा, फिर दूसरी इंफॉर्मेशन गया, उसके बीच में कुछ गैप रखा, कुछ इंफॉर्मेशन वेस्ट हो गई, कुछ नहीं पहुंच पाई, कुछ खराब हो गई इंफॉर्मेशन डाटा, बीच में आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ गया। तो अगर 40% एफिशिएंसी आई, सो इट मीन्स डिवाइडेड बाई दिस, एक एक साइड डाटा एक सब स्टेशन से है, या सपोज जो जितने भी 20 RTU लगे थे, उससे पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन इधर पहुंचना और वहां से कमांडिंग इन्फॉर्मेशन इधर आना, इसके लिए आपको 42 सेकंड लगा। तो लेकिन मान लो आपको इसे थोड़ा गैप मानते हुए 1 मिनट लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक मिनट के बाद क्या होगा, एक सब स्टेशन का पूरा एक मिनट में पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, फिर अगले मिनट की इंफॉर्मेशन आएगी, ऐसे तो होगा। पूरी इंफॉर्मेशन इधर से इधर और इधर से इधर जाने में 1 मिनट लगा, इंक्लूडिंग ऑल द कम्युनिकेशन गैप्स एंड फेलियर एटसेट्रा। तो अब 1 मिनट के बाद दूसरी, क्योंकि एवरी मोमेंट द इंफॉर्मेशन इज बीइंग चेंज, ऐसा नहीं ना ट्रांसफार्मर ऑन है तो ऑन रहेगा, कभी भी फॉल्ट आ सकता है, ऐसे ही टेम्परेचर राइज कभी भी हो सकता है। तो इसका मतलब हर एक सेकंड पे, हर एक मिनट पे इंफॉर्मेशन जाएगी। द इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसफर आफ्टर ईच मिनट, उससे कम टाइम पर नहीं जा सकती। मतलब अगर सपोज करिए कोई कहीं पर्टिकुलर फॉल्ट, एक इंफॉर्मेशन पहुंच गया, अगली इंफॉर्मेशन जाएगी वो 1 मिनट के बाद जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहीं कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस है, कोई अलार्म सर्कमस्टेंसेस है जहां हमें इंफॉर्मेशन या ऑर्डर 1 मिनट से कम उसमें चाहिए, हमें जल्दी जल्दी चाहिए, डिसीजन चाहिए, तो कैसे करेंगे। कभी अगर सपोज फॉल्ट नेचर है, तो फॉल्ट अगर 1 मिनट बाद पता लगा, तब तक तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो अगर नेचर ऑफ फॉल्ट की बात करें, अगर कुछ है कि वोल्टेज लेवल थोड़ा हाई हो रहा है, तो कुछ समय के लिए टेम्परेचर राइज, आप टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन है आपका 30 से 35 हो गया, तो फिर 1 मिनट बाद क्या हो रहा है, देन नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक ए डिसीजन। So depending upon the nature of the information being transferred, suppose करिए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर RTU, एक ऐसा RTU है जिसपे हमारा बहुत इमरजेंसी इंफॉर्मेशन है, तो हम उसमें क्या करेंगे, जब डिजाइन किया था, जैसे डिजाइन क्या किया था, 8 RTU ये माना था, देयर आर 8 RTU एंड after adding the future number of RTU we included the total number of RTU considered by 20. तो सपोज आउट ऑफ 20 या सपोज टोटल आर 6, आउट ऑफ 6 कोई एक RTU जो उससे इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमने 2 बार स्कैन कर दिया, एक ही साइकिल में 2 बार स्कैन कर दिया, स्कैनिंग RTU 1, स्कैनिंग RTU 5, 2, 3, 4, 5, 6, 5 2 बार आ गया, तो उसको हमने 1 मिनट की जगह आधा मिनट पे उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। इस तरह हम इसको ये करते हैं। जाती है, दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल डायग्राम इज बीइंग फॉलोड। इसमें क्या, एक तो मैसेज, ये जो टोटल, जैसे हमने कहा आपका कैलकुलेट आया था कि भाई टोटल साइज, जो इंफॉर्मेशन, जो टोटल आपका मैसेज जा रहा है उसका साइज ईच किस टाइप का होता है, दिस इज द फिक्स्ड लेंथ। ये कैसे पता, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कैसे पता लगेगा कौन सी इन्फॉर्मेशन किसके लिए है, और वो इन्फॉर्मेशन वास्तव में पहुंची है या डिस्टॉर्ट हो गई है बीच में। तो सम प्रोटोकॉल इज बीइंग फॉलोड, दिस इज द मैसेज एस्टेब्लिशमेंट। ये मैसेज एस्टेब्लिशमेंट ये बताता है कि भाई मैसेज इज बीइंग सेंट फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर RTU, मतलब इसमें फिर व्हाट डाटा इज बीइंग सेंट, इंफॉर्मेशन क्या भेजा जाना है, दैट वी विल डिस्क्राइब इन डिटेल। दिस इज द मैसेज टर्मिनेशन, उस पर्टिकुलर RTU पे इंफॉर्मेशन पहुंच गई, देन इट विल बी टर्मिनेटेड, मींस इट विल बी सेंट टू द, कि अब दूसरा RTU को कहेंगे आप अलर्ट हो जाओ। यहाँ पे पहला जिसको भी हो, सपोज करो 20th RTU था, 20th RTU अलर्ट हो जाएगा, यहाँ पे उसे पता लग जाएगा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है, क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पता लग गया। उसके बाद इन्फॉर्मेशन टर्मिनेट हो गई, नेक्स्ट RTU अलर्ट हो जाएगा, तो मैसेज टर्मिनेशन हो गया। और ये देखेगा जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो बीच में कम्युनिकेशन के टाइम पे कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं हो गई, तो उसे सिक्योरिटी एनालिसिस भी होगी। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगा सिक्योरिटी एनालिसिस मींस जो इन्फॉर्मेशन ये आई और इसके हिसाब से कोई फॉर्मूला लिख के आपको सिक्योरिटी कोड भी आएगा, और दैट सिक्योरिटी कोड विल बी मैच्ड विद द
सिक्योरिटी कोड विल बी मैच विद द RTU सिक्योरिटी कोड, तो पता लग जाएगा उसके लिए। इसका डिटेल ये है, तो यू कैन रीड एट योर ओन प्रोटोकॉल। सो वी हैव जस्ट डिस्क्राइब अबाउट द सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। आपको दिस टॉपिक इज ओवर एंड यहाँ तक किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो कर सकते हो। नो, तो दिस टॉपिक इज ओवर। आई थिंक ओनली वी नीड टू टेक वन मोर क्लास ओनली। इन एडिशन टू दैट एक क्लास होगी, उसके अलावा